کیا تھا کہ کس طرح سے ایوب جو ہے وہ فخر خدا ہے کہ خدا اس کی زندگی پر فخر کرتا ہے. ہاللویا. تو اس سے پہلے کہ میں اس کو کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں، آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں جو پچھلی دفعہ ہم نے حوالہ پڑھا تھا، اسی حوالے کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے. ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات. ایوب کی زندگی کی جو ہے وہ 4 خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے. 4 خوبیوں، اور اس کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے میں آپ کو ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کیا تھا کہ ایوب جو ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر خدا فخر کرتا ہے، اور خدا نے ایوب کی زندگی کے اوپر فخر کیا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار. تو ہم دیکھ رہے ہیں اسی سلسلے میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو خدا ہماری زندگی کے اوپر بھی فخر کر سکتا ہے. He can be proud on us. وہ ہم پر فخر کر سکتا ہے. جیسا کہ داؤد کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے. اور چند سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق بن گیا، کہ خدا کے دل کے موافق وہ شخص بن گیا. اور جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ہم خدا کے دل کے موافق لوگ بن جاتے ہیں. اور پچھلے ہفتے میں نے یہی سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایوب جو ہے وہ فخر خدا ہے، یعنی خدا اس کے اوپر فخر کرتا ہے. تو ہم انہی باتوں کے، ان کوالٹیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ابھی کہ اگر ہم ان کوالٹیز کو، ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو خدا ہماری زندگیوں پر بھی فخر کر سکتا ہے. It is not impossible, it is possible. دوسری بات جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایوب جو ہے وہ فضل کے دور میں نہیں تھا، ہم فضل کے دور میں ہیں. ہم زیادہ خدا کے لیے فخر خدا بن سکتے ہیں، زیادہ خدا کے فخر کا باعث بن سکتے ہیں. اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا ایوب کی 4 خوبیوں کے بارے میں کہ وہ کامل شخص تھا. اس کے دوستوں نے اس کے اوپر ہر طرح کے گھنونے الزام لگائے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل خدا کی نظر میں راست تھا. اور وہ اس کے دوست اس کو کہتے رہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ کہتا رہا کہ نہیں، میں خدا کی نظر میں راست ہوں. کیونکہ جب تک ہمارے دل میں گناہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے اوپر ملامت نہیں آتی. ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمیں الزام نہیں دیتا، ہمیں ملزم نہیں ٹھہراتا. پھر دوسری بات ہم نے اس کے دیکھی کہ ایوب جو ہے اپنے اس دور کا راست باز شخص تھا. بالکل سیم وہی لفظ استعمال ہوا ہے نو کے لیے جو استعمال ہوا تھا کہ نو اپنے زمانے کے لوگوں میں راست باز تھا. ویسے ہی ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب جو ہے اس جنریشن میں، اس وقت کے اس دور میں خدا کی نظر میں راست باز آدمی تھا. اور پھر تیسری بات جو ہم نے ایوب کی زندگی میں سے دیکھی وہ تھی کہ ایوب جو ہے وہ بدی سے دور رہتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا. اور اگر ہم بھی بدی سے دور رہیں، بدی سے کنارہ کریں تو میرے عزیزو ہم بھی خدا کے لیے باعث فخر لوگ بن سکتے ہیں. اور پھر چوتھی بات ہم نے دیکھی جو کہ سب سے اہم ہے، جو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی کے لیے بہت اشد ضروری ہے، وہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا. وہ خدا سے ڈرتا تھا. اگر خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگیوں میں ہوگا تو میرے عزیزو ہم ہرگز گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، گناہ کی طرف جانے سے ڈریں گے. ہمیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. ہم خدا کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ کریں گے بنسبت انسانوں کی. اور پھر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ ایوب کے جو دکھ ہیں، جس کرب میں سے ایوب گزرا، ان کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح وہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو گیا، اس کے پھوڑے نکل آئے، اور پھر نہ صرف پھوڑے نکل آئے بلکہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے. اور پھر کس طرح سے اس کے جو دوست ہیں وہ اس کو اذیت دیتے ہیں، کس طرح سے اس کے جان پہچان والے جو ہیں وہ اس کے منہ کے اوپر تھوکتے ہیں، کس طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر ایک بوجھ ہوں. وہ اپنے جنم دن کے اوپر لعنت کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب وہ میرا تمسخر اڑاتے ہیں. یعنی وہ بیان کرتا ہے کہ اب میں لوگوں کے لیے ایک مذاق کا نشان بن گیا ہوں. لوگ میرا نام لے کر تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں.
और फिर हमने देखा कि अय्यूब के तीसरे बाब में से कि अय्यूब के दुखों में कि अय्यूब कहता है कि लोग जो हैं अब वो मेरे मुंह पर थूकते हैं, जिनको मैं अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देता था। जब वो मुझे दूर से आता हुआ देख लेते थे तो उठ खड़े होते थे, खड़े हो जाते थे, अब वो मेरे मुंह पर थूकते हैं। देखिए किस कदर अजियत में से वो शख्स गुजरा। और फिर वो कहता है कि वो मुझसे घिन खाते हैं और मुझसे दूर खड़े होते हैं। यानी उनको अब अय्यूब से स्मेल आती है, बदबू आती है, और वो उसके करीब आकर खड़े नहीं होते बल्कि उससे दूर होकर खड़े होते हैं। और फिर हमने अय्यूब की बीवी के बारे में भी देखा कि उसकी बीवी भी कहती है कि खुदा का गुनाह कर और मर जा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि हर एक रिश्तेदार ने अय्यूब के छोड़ दिया, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, उसके जान पहचान वालों ने उसे छोड़ दिया, और उसके शहर के जो हाकम जो उससे आकर नसीहत लेते थे, एडवाइस लेते थे, उन्होंने भी उसको नाचीज जाना। और अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि वो इन सारे दुखों में, सारे तकलीफों में खुदा के साथ वफादार रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसने खुदा का गुनाह ना किया, बल्कि उसने ये कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो मेरे अजीजों, हालात चाहे कैसे ही हो जाए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर हम भी अय्यूब की तरह खुदा के साथ वफादार हैं, साबित कदम रहे, तो खुदा अपनी बरकतों को हम पर निछावर करेगा और वो हम पर फख्र करेगा। फिर पिछले हफ्ते में ही हमने देखा था कि अय्यूब की रास्तबाजी के बारे में, कि वो अपनी रास्तबाजी को किस तरह से देखता है। ठीक है, हमने देखा था कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि इन सब बातों के बावजूद अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। और फिर कलाम मुकद्दस में से हमने यह भी देखा कि इन सारा कुछ इसके ऊपर आने के बावजूद उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसके बच्चे मर गए, माल मवेशी खत्म हो गया, घर बार लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अय्यूब ने गुनाह ना किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। यानी उसने खुदा पर भी इल्जाम लगाया कि ये खुदावंद, ये सारी आफत तेरी ही वजह से आई है, तूने मुझ पर ये जुल्म किया। नहीं, बल्कि उसने कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो मेरे अजीजों, अगर हम, जब हमारी जिंदगी में खुदा बरकतें लेकर आता है तो हम कितनी खुशी करते हैं, कितने शादमान होते हैं, लेकिन जरा छोटा सा जब कोई हमारी जिंदगी में दुख आ जाता है तो हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये खुदा ने मेरे लिए कर दिया, वो खुदा ने मेरे लिए कर दिया, ऐसा खुदा ने मेरे लिए कर दिया। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम सब्र का दामन कभी भी अपनी जिंदगी से जाने ना दें। और फिर पिछले हफ्ते में हमने अय्यूब के जो दोस्तों की इल्जाम तराशियां हैं उनके बारे में हमने देखा कि किस तरह के इल्जाम जो है वो अय्यूब के दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर लगाते हैं। तकरीबन पिछले हफ्ते में मैंने 18 जो इल्जाम हैं उनके बारे में शेयर किया था। अब मैं उन 18 को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूंगा तो फिर आगे के जो बाकी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे जो है अय्यूब 20वां बाब और उसके 5वें बाब की 29वीं आयत से के दरमियान में जो इल्जाम अय्यूब के ऊपर लगाए गए उनके बारे में मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अय्यूब के जब दोस्त आए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब तक वो खामोशी के साथ उसके पास बैठे रहे तब तक अय्यूब को तसल्ली मिलती रही, तब तक अय्यूब को सहारा मिलता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जुबान खोली तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस दोस्तों के अल्फाज ने उसके सीने को चीरना शुरू कर दिया, उसका सीना जो है फटना शुरू हुआ, उसके ऊपर और ज्यादा दुख आया, और ज्यादा उसके ऊपर परेशानी आई, और ज्यादा उसके ऊपर मलामत आई, और ज्यादा उसके दोस्तों ने उसको हकीर, कमतर और गुनहगार और शरीर साबित करने की कोशिश की। और यहां पर लिखा है 20वें बाब के 5वीं आयत से 29वीं आयत के मुताबिक कि उसके दोस्त आए उसके पास और उसके दोस्तों ने कहा कि शरीरों की फतह चंद रोजा है, जो तेरा जहो जलाल था वो चंद रोजा था। यकीनी तौर पर तूने खुदा के नजदीक कोई शरारत की है, कोई गुनाह किया है, तूने खुदा की नजर में कोई पोशीदा गुनाह किया है, जिसकी वजह से ये सारी आफत, ये सारा दुख, ये सारी तकलीफ, ये सारी बीमारी, ये सारी परेशानी
तेरे ऊपर आई है, इसी गुनाह की वजह से तेरा खानदान तबाह बर्बाद हुआ है, तेरी औलाद मर गई है और तेरे माल मवेशी भी तुझसे जाते रहे। तेरी इज्जत जो है वो नामूस में, तेरी इज्जत जो है वो बदी में, गुनाह में, बेइज्जती में बदल गई। तेरी इज्जत जो है वो बेइज्जती में बदल गई है, तेरी खुशी जो है वो गम में तब्दील हो गई है और तेरा जाहो जलाल जो है वो मुफलिसी में बदल गया है। क्योंकि शरीरों की जो तरक्की है, जो फतह है, वो चंद रोजा है। तो अय्यूब बयान करता और कहता है कि नहीं, तुम चाहे जो कुछ मर्जी करो, जिस खुदा ने कि मैं इबादत करता हूं वो मुझे फिर से बहाल करेगा। और मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया कि वो कहता है कि मैं इन आंखों से, इन फानी आंखों से जो खत्म होने वाली हैं, इन्हीं आंखों से फिर दोबारा मैं खुदा को देखूंगा। वो उम्मीद को अपने दामन से जाने नहीं देता, वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मेरे पास उम्मीद है, चाहे ये सब कुछ खत्म हो जाए, मेरे पास अभी भी उम्मीद है कि खुदा मुझे फिर से बहाल करेगा, खुदा फिर से मुझे उठा खड़ा करेगा और खुदा अपनी बहाली को मेरी जिंदगी में लेकर आएगा। फिर उसके दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि बेदीनों की खुशी जो है वो दम भर की है। जो बेदीनी में लोग गुजारते हैं जिंदगी, जो खुदा के साथ वफादारी में जिंदगी नहीं गुजारते, उनकी खुशी सिर्फ पल भर की होती है। तूने बहुत खुशी मना ली है। वो उसको आकर टीसते थे, उसको छेड़ते हैं उसके दोस्त और कहते हैं कि तेरी जो खुशी है वो दम भर की थी, बस थोड़े वक्त की थी जो अब खत्म हो गई है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं फिर से खुदा को देखूंगा। मैंने उस कद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। खुदा को मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप 10वें बाब की 7वीं आयत को पढ़कर देखें तो वो कहता है कि खुदा को मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूं, खुदा को मालूम है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, खुदा को मालूम है कि मैंने बेदीनी में जिंदगी नहीं गुजारी। फिर उसके दोस्त उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि शरीरों की तरक्की और जहो जलाल हमेशा के लिए फना हो जाता है। शरीरों की तरक्की और जहो जलाल हमेशा के लिए फना हो जाता है। वो उसको आकर छेड़ते हैं और कहते हैं कि जो शरीर हैं वो जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितने ज्यादा मर्जी जहो जलाल का मालिक बन जाए, लेकिन आखिरकार वो जमीन पर पटके जाते हैं, आखिरकार वो जमीन पर वापस गिरते हैं। तो वो कहते हैं कि तेरा जो जहो जलाल है, जो तेरी इतनी सारी तरक्की जो तूने की थी, वो सब खत्म हो गई है। अब तू जमीन पर पटका गया है, अब तू जमीन पर गिरा दिया गया है, इसलिए क्योंकि तूने पोशीदगी में गुनाह किया है। तो वो बयान करता है और कहता है कि मैं उसकी राहों पर चलता रहा हूं, मैं बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके हुक्मों से हटा नहीं हूं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। वो कहता है 10वें बाब में, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं 11वीं से 12वीं आयत के मुताबिक, वो कहता है कि मैं खुदा का गुनहगार नहीं हुआ, मैंने पोशीदगी में खुदा का गुनाह नहीं किया, बल्कि मैं रास्त दिली के साथ उसकी राहों पर चलता रहा हूं। मैंने उसके हुक्मों को माना है क्योंकि मैं उसके हुक्मों से फिरा नहीं हूं। मैंने उसकी मुंह की बातों को अपनी खुराक से भी ज्यादा जमा किया है। लेकिन यहां पर अय्यूब जो है वो कहता है कि मैंने खुदा के मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जमा किया है। वो कहता है कि मैंने खुदा का गुनाह नहीं किया, मैं खुदा से भटका नहीं, मैं खुदा की तरफ से मुड़ा नहीं, मैंने खुदा की तरफ अपनी पीठ नहीं फेरी, बल्कि मेरी नजर जो है, मैं अपने दिल की तरफ से जब देखता हूं तो मुझे खुदा की तरफ से कोई मलामत नहीं होती। मैं अपने आप को खुदा की नजर में ठीक महसूस करता हूं, रास्तबाज पाता हूं, क्योंकि मैंने खुदा का गुनाह नहीं किया। तो मेरे अजीजों, अगर हम भी दूसरों की इल्जाम तराशियों को एक तरफ रखते हुए, चाहे दुनिया के लोग हमें जो कुछ मर्जी कहें, हम खुदा के साथ जब अपना ताल्लुक बराह रास्त रखेंगे तो फिर मेरे अजीजों, कोई चीज जो है वो हमें खुदा के कलाम से मुड़ने के, दाएं या बाएं मुड़ने में हायल नहीं हो सकती। जैसे यशुआ को खुदा ने कहा कि तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना,
तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब हम खुदा के कलाम से दाएं या बाएं नहीं मुड़ते तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले चलता है, और खुदा हमें तरक्की पर तरक्की देता है, और खुदा फिर इब्लीस को हमारे पांव के जरिए से कुचल डालता है। कैन यू से आमीन? आमीन, हालेलुया। फिर आगे अय्यूब के जो दोस्त हैं उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि शरीरों के हाथ उसकी दौलत वापस करेंगे। यानी जितना उन्होंने शरीरों ने कमाया है वो सब कुछ उन्हें अपने ही हाथों से देना पड़ेगा, यानी वो सब कुछ उनके हाथ से छिन जाएगा, सब कुछ उनके हाथों से जाता रहेगा। तो यहां पर अय्यूब के दोस्त जो हैं उसको कहते हैं कि ये जो तेरा सब कुछ छिन गया है, ये तेरा सारा माल और दौलत जो जाता रहा है, इसमें कहीं ना कहीं शरारत शामिल थी, इसलिए ये तेरा सब कुछ जाता रहा है, इसलिए ये तेरा सब कुछ लुट गया है। तो मेरे अजीजों, अय्यूब जानता है कि उसने खुदा का गुनाह नहीं किया। फिर उसके बाद उसके दोस्त उसको टीज करते हुए कहते हैं कि शरीरों ने जो माल जमा किया है उसके मुताबिक वो खुशी ना करेंगे। वो कहते हैं कि जो शरीरों ने माल और दौलत धोखे फरेब के साथ जमा किया है, उस धोखे फरेब के माल और दौलत से वो खुशी नहीं मना सकेंगे, उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे, वो जैसे आया है वैसा ही चले जाएगा। तो उसके दोस्त जो हैं वो आकर उसको ये भावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये जितना सारा माल और दौलत लुट गया है, ये तेरी सारी चीजें जो जाती रही हैं, इसके पीछे जो है वो गुनाह है, क्योंकि गुनाह की कमाई जिस तरह आती है वैसे ही चली जाती है, क्योंकि गुनाह की कमाई में बरकत नहीं है, क्योंकि गुनाह की कमाई में खुदा गम को शामिल करता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दौलत में खुदा खुशी और शादमानी को शामिल करता। आप इसको वाज की किताब में पढ़कर देख सकते हैं। फिर उसके दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं 20वें बाब के मुताबिक, शरीर अपनी कमाल आसूदा हालत में भी तंगी में होगा। उसके दोस्त उसको कहते हैं कि तूने ये सारा कुछ नाम इज्जत कमाया, तूने बहुत सारा माल और दौलत हासिल किया, तेरे पास बहुत सारे जानवर थे, तेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन ये सब कुछ जो है वो तेरी जान को खुशी नहीं दे पाया, ये सब कुछ तुझे आसूदा नहीं कर पाया, क्योंकि शरीरों अपनी कमाई की कमाल आसूदगी में भी तंगी में होगा। तो इस वक्त जो ये तुझ पर तंगी आई है, ये उस गुनाह की वजह से आई है जो तेरी जिंदगी में है, जिसका तू इकरार नहीं कर रहा, जिसकी तू माफी नहीं मांग रहा। तो मेरे अजीजों, अय्यूब जो है वो कहता है 33वें बाब के मुताबिक, 33वें बाब की नामी आयत में वो बयान करता और कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ में बदी नहीं, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, बाज आओ, मैं हक पर हूं। वो अपने आप को जताता है कि मैं खुदा की नजर में रास्त हूं। वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझ में बदी नहीं है। तो मेरे अजीजों, आज जरा अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें जरा कि क्या हम बदी का गर्विदा बन चुके हैं? क्या गुनाह हमें चारों तरफ से आए दबाए हुआ है? क्या हम गुनाह में इतने ज्यादा मगन हो गए हैं कि हमें खुदा की रास्तबाजी नजर नहीं आती? क्या हम खुदा से इस कदर दूर हो चुके हैं कि कोई घिनौने से घिनौना काम जो है वो भी हमें गुनाह नजर नहीं आता? हम जमीर के इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान में जो तमीज है वो भूल गई है। मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को झंझोड़ने की जरूरत है, आज अपने आप को हिलाने की जरूरत है, और आज जागने की जरूरत है, उस सुस्ती में से निकलने की जरूरत है। अगर हम इस गफलत की नींद में सोए हुए हैं तो फिर मेरे अजीजों, ना सिर्फ खुद अपने आप को जगाने की जरूरत है, बल्कि दूसरों को भी झंझोड़ कर जगाने की जरूरत है कि खुदा बदकारों का मुकाबला करता है लेकिन रास्तबाजों पर अपना रहम नाजिल करता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा शरीरों को सजा देता है 7वीं पुश्त तक, लेकिन खुदा रास्तबाजों को बरकत देता है 100वीं पुश्त तक। खुदा का रहम और खुदा का फजल जो है वो कसरत के साथ है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम दुनिया की चीजों पर कनायत ना करें, दुनिया की चीजें जो है वो हमें अपना गर्विदा ना बनाएं। हम दुनिया के थोड़े से माल और दौलत के लिए
खुदा के ذات का इनकार ना करें, थोड़ी सी दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए खुदा का इनकार ना करें, दुनिया में एक स्टेटस बनाने के लिए दुनिया और नाराज लोगों को, दुनियादारी के लोगों को खुश करने में लगे ना रहें, बल्कि हमारा ध्यान हमेशा खुदावंद को खुश करने में लगा रहे। और फिर आखिर में 20वें बाब की 29वीं आयत में अय्यूब के दोस्त जो हैं वो उसको ताना देते हुए कहते हैं कि खुदा का कहर, गुस्सा और तबाही शरीरों की मिरास मुकर्रर कर दी गई है, कि खुदा का कहर, खुदा का गुस्सा और खुदा की तबाही जो है वो शरीरों की मिरास मुकर्रर कर दी गई है, और अब ये तेरी मिरास है, अब ये तेरा हिस्सा है। तो वो कहता है, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर, के वो कहते हैं कि जो खुदा का कहर तुझ पर नाज़िल हुआ है, खुदा का गुस्सा जो तेरे ऊपर आया है, भड़का है, और खुदा की तरफ से जो तबाही तेरे ऊपर आई है वो तेरी शरारत की वजह से है, क्योंकि शरीरों की मिरास जो है वो खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर और खुदा की तरफ से तबाही और बर्बादी है। और ये जो आज सब कुछ तू देख रहा है ये तेरे गुनाहों की वजह से हुआ है। तो मेरे अजीजों, अगले हफ्ते इस सिलसिले को मैं जारी रखूंगा, और अगले हफ्ते हम अय्यूब की बेगुनाही और अय्यूब के भरोसे और फिर अय्यूब के नेक कामों का और अय्यूब की खाकसारी, तौबा और बहाली और अय्यूब की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं, ये सारे सिलसिले हम आगे चलकर इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावंद तू मुझे फजल दे कि मैं तेरे साथ देनदार हूं।